وہ پڑھنے سے بھی ڈرتی ہے. وہ بکس دیکھتی ہے, بیگ دیکھتی ہے تو چلانے لگ جاتی ہے. جب اسکول میں گئی ہوں انہوں نے کہا جی جب رپورٹ آئے گی تب بات کرنا ہمارے ساتھ. ہمیں وہاں سے بھی دھکے ملے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں INN اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے علاقہ شادرہ میں. یہاں پر چھوٹی سی ننھی سی کلی حلیمہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. درندہ صرف انسان نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے. ناظرین، ننھی کلی حلیمہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، اس سے جانتے ہیں. اچھا بیٹا، آپ یہ بتائیں کہ کون سے اسکول میں آپ پڑھتی ہیں اور یہ کون سے اسکول میں آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے؟ ہائی اسکول. اچھا، تو کیسے یہ آپ کے ساتھ واقعہ کیا اس نے؟ کیسے آپ کو درندگی کا نشانہ بنایا؟ جب میں بریک ٹائم واش روم گئی تھی نا تو تب آیا تھا وہ لڑکا میرے پیچھے. تو میں واش روم گئی تو وہ دیکھ رہا تھا تو اس نے مجھے دھکا دیا. جب میں باہر نکلنے والی اس نے مجھے دھکا دیا. تو میں جیسے آنے والی اس نے دروازہ ڈور لاک کر کے مجھے دھکا دے کے نا بات مس کی تھی. تو میں نے مس کے پاس بھی گئی تھی تو مس کہتی ہے کہ تم بیٹھ جاؤ وہاں جا کے تو میں تمہیں اس سے پوچھ لیتی ہوں. تو پھر میں نے میری دوست نے پوچھا تھا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا میرے پیٹ میں پین ہو رہی ہے. تو کہتی ہے اچھا. تو پھر میں نے گھر آ کے ماما کو بتایا تھا. ناظرین، بچی کی بات آپ نے سنی. والدہ بچی کی میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچی نے کیا آپ کو بتایا آ کے گھر اور کیا ان نے رسپانس جو ہے وہ دیا، اور ان کی ابھی تک کیا جو ہے وہ حکومتی کسی نمائندے نے ان کی بات سنی یا پولیس نے ان کی بات سنی کہ نہیں. والدہ سے جانتے ہیں. جی باجی، آپ بتائیے گا کہ بچی نے آپ کو گھر آ کے بتایا تو آپ نے پھر آگے سے کیا رسپانس دیا اور آپ کی کسی نے بات سنی ابھی تک کہ نہیں؟ اس طرح کوئی نہیں ہے کہ کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا ابھی تک. 8 دن ہونے والے ہیں، صبح پورے 8 دن ہو جانے. ابھی تک کوئی ایسا رسپانس دیا ہے جس سے لگ سکے کہ ہاں بھائی ان کو اس پہ ڈاؤٹ ہے یا وہ سامنے آ جائے گا. ابھی تک اس طرح کا کوئی تعاون نہیں ہوا. میری بچی بڑی اذیت میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے. میں خود بڑی اذیت میں ہوں. وہ ڈیلی ڈر جاتی ہے ان باتوں کو سوچ کے. جب تک اس کے مجرم کو سزا نہیں ملے گی تو اس کے دل سے خوف کیسے ختم ہوگا؟ وہ اسکول کے نام سے بھی ڈرتی ہے. اس کے ارمان ہے، اس کو شوق ہے پڑھنے کا، پر اب جب سے اس سے یہ واقعہ ہوا ہے وہ پڑھنے سے بھی ڈرتی ہے. وہ بکس دیکھتی ہے، بیگ دیکھتی ہے تو چلانے لگ جاتی ہے. میری بیٹی کو انصاف دے دیں. آپ کی بڑی مہربانی. وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ سے درخواست ہے پلیز میری بیٹی کو انصاف دے دیں. میں بڑی اذیت میں ہوں. ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی. ایسا واقعہ ہے کہ میرا سر جو ہے وہ بھی شرم سے ان کے آگے جھک گیا ہے کہ ایسا دل خروش واقعہ کہ میں الفاظ نہیں ادا کر سکتا. اور میری بھی درخواست ہے حکومتی نمائندوں سے اور سیکورٹی نافذ کرنے والے اداروں سے کہ ایسے واقعات ایسی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، ایسی ننھی کلیوں کے ساتھ اگر درندے جو ہے وہ ایسے ہی کرتے رہے تو پھر معاشرے میں تعلیم یافتہ یا تعلیم حاصل کرنے والی کوئی بچی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گی. اگر میں ان کی والدہ سے بات کر رہا تھا تو وہ بھی یہی مجھے بتا رہی تھی کہ بچی جو ہے وہ بہت ڈر گئی ہے کہ اسکول جانے سے بھی کیا کتابیں پکڑنے سے اب ڈرتی ہے. تو بچی کی نانو موجود ہے میرے ساتھ. بس بیٹا صبح کے ٹائم اسکول گئی ہے، 1 بجے گھر آئی ہے، رونا شروع ہو گئی ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، میری ٹانگوں میں درد ہے. جب ہم نے چیک کیا تو ساری خون میں لت پت تھی. ہم اسکول والا کا گھر گئے، انہوں نے کہا جی ہمارے اسکول کا واقعہ نہیں، ہمیں دھکے دیے ہم آ گئے. جب اسکول میں گئی ہوں انہوں نے کہا جی جب رپورٹ آئے گی تب بات کرنا ہمارے ساتھ. ہمیں وہاں سے بھی دھکے ملے لیکن ابھی تک کوئی انصاف نہیں ملا. نزدیک بھی نہیں ہے انصاف. بس اسکول والا ٹیچر پکڑے ہوئے ہیں. ہم ان کا کیا کریں؟ انہوں نے جو کیمریز ہیں، ویڈیو ہیں، سب ڈیلیٹ کر دیا. واش روم انہوں نے دھو دیے. لیکن ہمیں انصاف چاہیے. میری اپیل ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. یہ بھی ایک زینب ہے، یہ زینب نہ بن جائے دوبارہ. وہ زینب مری کو انصاف ملا تو یہ تو زندہ ہے.
ये जिंदा आपके सामने बैठी है, लेकिन इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। ये इस माशरे का हिस्सा नहीं, ये रही अब ना बाहर जा सकती है ना घर में रह सकती है। ये किस तरह जिंदा रहेगी? इसके ख्वाब अधूरे रह गए, टूट गए अरमान इसके। ये कहती थी मैंने ऑफिसर बनना है, मैंने ऑफिसर बनना है, लेकिन अब बैक की तरफ देखती भी नहीं है। हम क्या करें? हमें खुदारा, हमें इंसाफ चाहिए। ये लोग पैसे वाले हैं। इससे पहले 2 वाक़या हो चुके हैं, 2 लड़कियां और थी, उनके साथ भी हो चुकी है। अच्छा माँ जी ये बताइएगा, अभी तक आपको पता चला जिस मुलजिम ने ये कोई की है कि आपने कोई FIR दर्ज करवाई है उसके खिलाफ? जी हमने तो करवाया, पर्चा हुआ है, नामालूम हुआ है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ये तो स्कूल वालों को पता है वो कौन है। अगर हमें पता होता तो जाहिर है हम उनका साथ देते। हम फिर भी साथ दे रहे हैं, हम फिर भी साथ दे रहे हैं। वो कहते हैं चुप करते, हम चुप हैं। वो कहते हैं इधर बैठ जा, हम इधर बैठ जाते हैं। क्या करें? हमें इंसाफ कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? इमरान खान साहब खुदा के लिए ये इंसाफ करें हमारा। ये बच्ची का कल है। नाजरीन अफसोस दर अफसोस है कि ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान को मुआशरे में फिरने की इजाज़त कैसे दी जा रही है। बच्ची का ये कहना है कि वो उसने उस दरिंदा सिफ्त इंसान की शक्ल नहीं देखी, नामालूम पर्चा हुआ है। तो अच्छा ये बताइएगा माँ जी, अभी बच्ची का DNA वगैरह कंप्लीट हो गया है? जी आज लेके गए थे, 9 का वाक़या आज गई है बच्ची। ये अभी हमें पक्का नहीं है कि कंप्लीट हुआ या नहीं, क्योंकि हमने तो ये सुना देखा ही पहली मरतबा है। अभी हमें नहीं पता। वो कहते हैं जी DNA के लिए लेके जाना है। अब लेके गए जो अब कहते हैं DNA 3 माह के बाद मिलेगा। ये सब कुछ खामोश हो जाएगा। तो पुलिस की तरफ से अभी कोई आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं पुलिस की जानिब से? हाँ ठीक है बेटा। जी बहन आप बताइएगा कि ये बच्ची के साथ क्या वाक़या पेश आया, किसने इसको दरिंदगी का निशाना बनाया और कहाँ पे ये वाक़या पेश है, ये बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या लाहौर के इलाका शहादरा में बरकत टाउन में गली नंबर 9 में आइडियल स्कूल एंड एकेडमी के नाम पे, जहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाती है, वहाँ पे तालीम नहीं, इनको लिखना चाहिए कि यहाँ पे तालीम दर्सगाह नहीं है। हम लोग आपको दर्सगाहों में नहीं पढ़ा रहे हैं। हम लोग बच्चियों को, औरतों को, बेटियों को, माओं को, बहनों को यहाँ पे तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। यहाँ पे जो है इन लोगों ने जुल्म की जो दुनिया कायम कर रखी है। यहाँ पे बच्ची को तशद्दुद किया गया, बच्ची के ऊपर जुल्म किया गया। छोटी सी मासूम बच्ची है, सुबह 7 बजे घर से निकली है स्कूल के लिए, तो वहाँ पे गई है, ब्रेक का टाइम था और वॉशरूम में बच्ची गई है। तो उस टाइम पे बच्ची ने बताया घर आके कि माँ को मैं वॉशरूम में गई हूँ, वहाँ पे एक होल से लड़का मुझे नीचे से देख रहा था। तो मैंने दरवाज़ा खोला है, मैंने बाहर निकलने की कोशिश की है। वहाँ पे उस लड़के ने मुझे धक्का दिया, अंदर से दरवाज़ा लॉक किया और मेरे साथ बुरी हरकतें की, मुझे मेरे साथ ज़्यादती की, मुझे तशद्दुद का निशाना किया। उसने कहा दरवाज़ा उसने खोला और वो चला गया। मैं रोते रोते स्कूल में टीचर के पास गई हूँ, क्लास में गई हूँ और टीचर को जाकर बताया कि ऐसे ऐसे लड़का मुझे तंग कर रहा है। और टीचर का कहना था कि तुम चुप करके क्लास में बैठो, छुट्टी होगी तो घर पे चली जाना। बच्ची जब घर पे आई, बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पेट में दर्द था। माँ को बता रही थी, पूछने पे उसने यही नानी को कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। और जब देखा उसने बताया कि मैं यूरिन कर रही हूँ तो मुझे ब्लड आ रहा है। जब उसको देखा गया तो तब हम लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि ये बात हो चुकी है। प्रिंसिपल के स्कूल गए तो पता चला कि प्रिंसिपल साहब तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं होते हैं। वो खुद की कोई गवर्नमेंट की जॉब करते हैं। वो इतना बड़ा स्कूल जो है वो किसी बच्चियों के हाथ पे करके जाते हैं, वो कैसे जिम्मेदारी उठा सकती हैं? प्रिंसिपल साहब को खुद चाहिए कि वो वहाँ पे मौजूद हो, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी होती है। बच्चे हम लोग उनके पास छोड़कर जाते हैं, जवाब हमने उनसे लेना है। हम दूसरे तीसरे बंदे को नहीं जानते हैं। उनकी मिसिस के पास गए हैं, ये बात लेकर फौरन से भागे हैं कि आप हमारे घर पे आए, उस बच्ची को देखें, हमारे साथ ये वाकया पेश आ गया है। उन्होंने बकायदा हमारी बात नहीं सुनी, हमारे साथ बदतमीजी की, हमें धक्का दिया है, हम लोगों को गाली गलौज किया कि आप लोग यहाँ से जाए, ये वाकया हमारे स्कूल में पेश नहीं आ सकता है। हम लोगों ने हर तरीके से कोशिश करने की कोशिश की है कि ये हमसे बात तो करें। हम इनके पास चल कर गए हैं कि हमारी आवाज़ सुने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने किया। उसके बाद हम लोगों ने 15 पे कॉल की है, वहाँ से पुलिस आई है, उन्होंने बच्ची को देखा है, उससे बात की है, जो भी उसने बयान दिया उसके बाद स्कूल में चले गए। सर को बुलाया गया, सर साहब को 1 बजे से कॉल करनी शुरू हुई है, सर साहब 4 बजे वहाँ पे पहुँचे हैं। 4 बजे आने के बाद हम लोगों को मज़ीद इंतज़ार करवाने के लिए कॉल्स करें कि अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में आऊँगा। तो हम लोग उनको कॉल करते रहे हैं, फिर वो आए हैं 4 घंटे बाद। सर हमसे मिलने के लिए आए, प्रिंसिपल साहब, सर अफजाल साहब।
तो उनसे जब मिले हैं तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया बच्ची स्कूल में नहीं आई है। तो ये बात होने पे हम लोगों ने घर से डायरी मंगवाई है, उस पे बच्ची का काम, नो डेट का सिग्नेचर, टीचर के हर चीज़ उनको दिखाई गई है। पूछने पे हम लोगों ने कहा कि कैमरे चेक करें, उन्होंने ये बात की कि उन लोगों ने कहा कि हमारे कैमरे ही खराब थे। यहाँ पे 9 तारीख को लाइट जाती है, गई हुई थी, और इनका जनरेटर सारा दिन ऑन रहा है, सारा दिन। हम लोग छत पे थे, हम लोगों ने देखा जनरेटर सारा दिन ऑन रहा है। इन लोगों ने CDR ही गायब कर दी। वो पुलिस को देने के लिए वो मान ही नहीं रहे थे कैमरे चल रहे हैं, किसी तरह इस बात पे वो नहीं आ रहे थे। बच्ची ने टीचर को कितनी दफा बताया कि एक बच्चा मेरे बाल खींचता, कम से कम वो इस पे एक्शन लेती। वो क्लास में गई है, उसको नहीं पता है उसके स्टूडेंट गायब है, उसको इस चीज का इल्म नहीं था कि मेरी बच्ची अगर मैं क्लास में ब्रेक हुई है, स्कूल में ब्रेक हुई है, ब्रेक बंद हो गई है, बच्ची इस टाइम पे 15 मिनट के बाद ब्रेक में आ रही है, वो तुम्हें बता रही है, रोती हुई वो क्लास में बैठी है, लेकिन उस औरत ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। बच्ची को रोते हुए वो बिलख रही थी कि मेरी आप बात सुने, लेकिन उसने रोते हुए इसको स्कूल से निकाल दिया कि तुम घर पे जाओ। तो खुदारा हमारी रिक्वेस्ट है वजीर आला पंजाब से, CPO लाहौर से, IG पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है, खुदारा बच्चियों की इज्जत को महफूज करे, ऐसे दरिंदों को निकाल ले, उनको सजा दे, चौक में फांसी दे, ताकि दोबारा कोई किसी की इज्जत को तबाह ना करे। जैसे जैनब का केस था, जैनब वो तो एक मासूम फूल थी, वो कुछ नहीं बोल सकती थी, कुछ नहीं बता सकती थी। अगर आपने उसका इंसाफ किया है तो हम लोग ये चाहते हैं खुदारा हमारी मदद करे। हम आपसे अपील कर रहे हैं, बार बार अपील करें, हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हमारी इस आवाज़ को बुलंद करें, ताकि बच्चियों के साथ जुल्म ना हो। ऐसे दरिंदों को जो है फांसी दे, बार बार कहते हैं इसको फांसी दे। हम लोगों को किसी से कोई अदावत नहीं, हम लोग बस ये चाहते हैं कि जो हमारी बेटी के साथ वो किसी के साथ ना हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं, IG पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं, CPO लाहौर से रिक्वेस्ट करते हैं, और तमाम माँ बेटियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आवाज़ को ऊंचा करें, आवाज़ को आवाज़ बनाएं। मेरी भी दरख्वास्त है हुकूमत के नुमाइंदों से, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से, अगर ज़ैनब को इंसाफ मिल सकता है तो हलीमा को भी इंसाफ मिलना चाहिए। और नाजरीन, अगर हलीमा को इंसाफ ना मिला तो ये उस पढ़ी लिखी जो औरत एक पूरा मुआशरा पढ़ा लिखा बनाती है, उस मुआशरे के साथ ज़्यादती की जाएगी कि अगर इस बच्ची के साथ इंसाफ ना किया गया। मेरी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मेरी भी दरख्वास्त है कि ऐसे केसेस को जो है वो ख़ुद नोट करें और ऐसे मुल्ज़िमान को जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।